पापा ये चालू हुई है शायद लेक्चर लेक्चर शायद चालू हुआ। Okay, let's get started.
लास्ट टाइम हम लोग ने किया था पॉलीमर, हम लोग ने शुरू कर दिया था पॉलीमर पे, ठीक है ना, और हम लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। चलिए एक छोटा सा टेस्ट, ठीक है, देख लेते हैं कितने प्रिपरेशन आप लोग ने किया। पढ़ाई हो रही है सबकी? या एवरीबॉडी स्टडिंग? हाँ, किसी के चेहरे से नजर तो नहीं आ रहा। चलो यस, ओके। Shadan, which chapter? Where were you last time? First lecture? Okay. Okay. We are doing polymers. Chapter name is polymer. Okay. Okay. Let's get started. All right. Now, the cameras is to be on. That is what has been said to me by sir. Every time he says, I see the video backs, I see that the cameras are not there. Okay. So whatever has been instructed you, please follow that. Okay. Because all the videos goes back, everything goes back to him. And he has a look that time the cameras are not on, that becomes a big problem. Okay. Yeah. Yeah. साहब अभी भी उठे ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो, okay. Question number 1. Okay. The smallest part of a polymer is called as what? The smallest part of the polymer is called as what? सही आंसर राइट है? मोनोमर। ये आंसर राइट है, राइट है, बोलना नहीं है, लिखना है। ओके, लिखते जाइए, ठीक है। The smallest particle is called as monomer. मोनोमर मिलाते हैं तो हम बना देते हैं पॉलीमर। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? What is the process called? Yes, it is called as polymerization. It is called as polymerization. All right. Now we have done the basics. Okay. Just to get actually was to just get you started. Okay. And what we'll do is we'll start the classification part. तो हम लोग ने जो बात किया था वो ये था कि अगर आपके पास पॉलीमर्स हैं, ठीक है, तो पॉलीमर का सबसे छोटा पार्ट होता है मोनोमर, और मोनोमर्स को अगर आप ऐड करते हो तो बनता है पॉलीमर। प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन, ठीक है, प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। आई थिंक वी स्टॉप्ड हियर, करेक्ट, लास्ट टाइम। एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ओके, चलिए देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। आज तो हम लोग ने किया था ये कि क्लासिफिकेशन चालू नहीं किया था। No. Okay. So write down classification of polymers. चलिए, we have to start from there. Yeah. Just sharing the screen. One minute. Yeah, here. So let's start with our classification. Here is the classification. So write down classification of polymers, and they are classified into 4 basic types. They are classified into 4 basic types. So this is classification. I'm writing here. The first classification is source. Source, and you will write the alternate name for this. Okay, so alternate name. So you can write down. Okay, we'll make a
what we'll do is we'll make a group only, make a table only. Okay, so write down in the form of a table only. Okay, that will make your job very easy. All right. The first classification is called as source. It is called as source, and alternate name. You can write down the alternate name. The alternate name for this is origin. Origin. That is called as origin. That is the alternate name. Okay. So original name is, this is one name, and this is called as the alternate name. Alternate name. Okay. I'll make the table as well. Okay. So here is the name, here is the alternate name. So it is called as source. Alternate name is origin. Alternate name is origin. Okay. Now it is divided into three parts. The first one, or A part, the first one or the A part is called as natural. A part is called as natural. And alternate name for this is plant and animal polymer. It is called as plant or animal polymer. So natural, and it's called as plant and animal polymers. Now when you say something is natural, आप बोलते हो natural है, इसका मतलब कुदरती तौर पे available है. It is available, right? So either it is going to come from plant or it is going to come from animal. So if I want to source it out from plant or animal, it will be something like this. Okay. So I have my plant here and I've got my animals here. Okay. Animal. So suppose plant, then it can be an example, can be is example is cotton. So this is the example, you have cotton. Now cotton यानी कि रुई यानी कि कपास, ये हमको मिलता है क्रॉप्स में. ठीक है. और क्रॉप्स कहाँ होते हैं, कहाँ से आते हैं? ठीक है. क्रॉप्स किधर होते हैं? धरती में. ठीक है. धरती पे है, इसको उगाते हैं हम लोग, और क्रॉप्स हमको मिलते हैं. इसमें है प्लांट. ठीक है. सो प्लांट, कॉटन का प्लांट होगा, उस पर से कॉटन निकलेगा, और इस कॉटन को अगर आप ऐड करते जाएं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसके ऐड करते जाएं, सबसे छोटे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोमर. आप ऐड करें तो ऐड करते 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 एक धागा बन जाएगा, और धागे को वीव करेंगे. ठीक है. इफ द क्लोथ इज जनरेटेड, ओके, तो आपने धागे को वीव किया. ठीक है. द थ्रेड हैज बीन वीव्ड एंड यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉटन क्लोथ. ठीक है. जस्ट लाइक कॉटन शर्ट्स. तो एक छोटी सी चीज से शुरुआत करके हम लोग एक मेजर चीज पे जाते हैं. सो दैट बिकम्स प्लांट, एंड प्लांट के अंदर आया सबसे पहले कॉटन. इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? Yes. Okay. Then another example can be, okay, one is cotton. Then you can have something like wool. So if it is wool, it is from sheep. Okay. And you get the formation of, okay, you add the wool, you get the thread, and then you can get the formation of sweaters. Okay. So pure sweater, if you're getting, okay, that is from animal. Okay. Again, if it is plant, you can have rubber. So rubber is from rubber plant. Okay. Natural it is, and you can use it for having a making rubber erasers, rubber band, tires, and so many number of products. Okay. So that is rubber. Then in animals or type, you can have something like silk. So silk comes from silkworm. The silkworms are there which generates the cocoon. Okay. And that is, it will have the silk threads over there. Okay. And when you put them in hot water, they die,
and leave the thread as it is, and then it is converted into a cloth. तो हम लोग क्या करते हैं, सिल्क लेते हैं, सिल्क को फिर हम लोग सिल्क का कपड़ा बना लेते हैं. किसी की जान जाती है तब सिल्क बनता है, इसीलिए सिल्क इज वेरी कॉस्टली. ओके, बट व्हाट इज एलिमेंट फॉर अस इज नेचुरल. नेचुरल है, और नेचुरल कहाँ से आएगा, प्लांट और एनिमल पॉलीमर से आएगा. प्लांट से आते हैं कॉटन, रबर, वूल, सिल्क, एंड देयर आर सो मेनी. देन यू कैन हैव जूट, हेम्प, फ्लैक्स, सो मेनी. बट द थिंग इज, लॉजिक ये याद रखना है कि ये नेचुरल है. इनका ऑल्टरनेटिव नाम जरूर याद रखना, प्लांट एंड एनिमल पॉलीमर. ओके, so this is plant and animal polymer. I hope this is clear. Okay, fine. Okay, and I'm putting all the examples over here. Examples. Let's talk about the next one. Okay, it is B, and it can be synthetic. It can be synthetic. They are called as man-made polymers. Man-made polymers. Okay, and synthetic means it is chemicals are involved. So chemicals are involved. So when you say synthetic, man-made polymers, ये आपको कुदरती तौर पे नहीं मिलेगा, ठीक है. ये आपको जनरेट करना होता है, और इसके लिए लोग इंडस्ट्रीज लगाते हैं. ये इंडस्ट्रीज होती है जिसमें ये कार्य होता है, और आपको वहां से जनरेट करके सिंथेटिक पॉलीमर मिलता है. ठीक है. सो नेचुरल की बात करते हैं तो बिल्कुल नेचर में मिलेगा, और सिंथेटिक की बात करते हैं तो केमिकल्स के थ्रू मिलेगा. ठीक है, विल गेट थ्रू द केमिकल्स. ओके, क्लियर? ओके, chemicals. Okay. Can I ask a question? Okay. You have to speak. आपको बोलना होगा. चलिए, कोई voluntarily बोलेगा? Okay. Very simple question, not very difficult. Anybody? नाम? Okay. Pratham, can you hear me? Yes, sir. Okay, Pratham. Just want to know what is your daily schedule? मतलब एक छोटा सा right from the start in the morning till your study time till 9 o'clock or 10 o'clock. Okay, वहां तक एक छोटा सा schedule, very short and sweet. Okay, but including all the points. ठीक है, चलिए. कितने बजे उठते हैं? ठीक है, वहां से a very short one. Yeah, Pratham. Okay. Yeah. चलिए, कोई नहीं बताना चाहता है तो चलो मैं बात कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं है, नॉट एन इश्यू एट ऑल. ठीक है, इट इज मैन मेड पॉलीमर्स. ओके, एंड इट इज इन्वॉल्विंग द केमिकल्स. केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो एग्जाम्पल दे देता हूँ. एग्जाम्पल है नायलॉन का. एग्जाम्पल है नायलॉन का. नायलॉन हमारी लाइफ में बहुत
ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए मैंने प्रथम को पूछा था, ठीक है, कि आपका शेड्यूल क्या है। एंड एवरीबडी शेड्यूल इंक्लूड्स नायलॉन। नायलॉन जो होता है, इसका सबसे पहला इस्तेमाल होता है हमारे मॉर्निंग में इन द फॉर्म ऑफ ब्रश। आपने देखा होगा ब्रश के ऊपर ब्रिजल्स होते हैं, और ये जो ब्रिजल्स होते हैं वो बनते हैं नायलॉन के। नीचे का जो पार्ट होता है वो प्लास्टिक का पार्ट होता है, लेकिन ये पार्ट डेफिनेटली नायलॉन का है। सो नायलॉन का ब्रश होता है, सो यू कैन हैव ब्रश विच इज मेड फ्रॉम नायलॉन। ओके, सो you can have brush, okay, nylon brush, you can write nylon brush. Then nylon rope, नायलॉन की रस्सी जिससे हम लोग कपड़े सुखाते हैं। नायलॉन का वैलेट जो आप यूज करते हो, ठीक है। नायलॉन के बैग्स आप इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अगर आप सड़क पे निकलो, ठीक है, एंड यू कैच अ 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, तो उसके जो टायर्स हैं नाइलो ग्रिप टायर्स, ठीक है, सो इट इज यूज देयर ऑल्सो। सो दिस इज मेड फ्रॉम केमिकल्स। ये आपको कुदरती तौर पे नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको कुदरती तौर पे नहीं मिलेगा। ओके, द केमिकल्स। एंड अगर इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछूं, उसके लिए आंसर्स दे सकते हो प्रणब? प्रथम आंसर दिया जा सकता था। व्हेन यू सेड यस, यू कैन हियर मी वेरी वेल, ओके, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर राइट हो या रॉन्ग हो, बट देन यू हैव टू कंट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो हम कंट्रीब्यूट करने चाहिए, बातें तभी होती हैं। आप अगर इंटरैक्टिव क्लास चाहते हो तो आप लोग का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ठीक है यार, लेके मैं भी खत्म कर सकता हूँ, बट इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड देन समथिंग, इट कैन नॉट बी स्टीरियोटाइप, इट शुड बी इंक्लूडिंग एवरी एस्पेक्ट व्हिच आर देयर। सो इट शुड नॉट बी लाइक अभी तो हाँ बोला और उसके बाद में गायब हो गए, ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी? Okay. Next one. It is called as semi-synthetic. Semi-synthetic. Semi-synthetic का मतलब होता है कि आप दो चीजों का इस्तेमाल करते हो, एक नेचुरल और दूसरा केमिकल। दोनों का इस्तेमाल अगर होता है तो उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर नेचुरल है सपोज कॉटन है और केमिकल है टेरलीन, ठीक है। सो टेरलीन प्लस कॉटन जब दोनों मिक्स होते हैं तो बनता है टेरिकॉट। टेरिकॉट के शर्ट आते हैं, पैंट आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनती हैं टेरिकॉट की। तो जब हम बात करते हैं टेरिकॉट की, तो टेरलीन प्लस कॉटन से वो बनता है। तो टेरिकॉट आपने इसको यूज किया तो कोई भी आपके जो शर्ट्स होते हैं, जैसे आप कॉटन के शर्ट्स खरीदते हो मार्केट में, ठीक है, तो उस पर लिखा रहता है 100% कॉटन या प्योर कॉटन। 100% प्योर कॉटन जनरली नहीं होता है, उसमें टेरलिन मिक्स होता है। अगर प्योर या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉटन का शर्ट होगा तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। नॉर्मल हमारे शर्ट्स होते हैं 200 500 1000 2000 के शर्ट्स होते हैं, ठीक है। और एक प्योर कॉटन का शर्ट जो एकदम फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन का होगा, इट मे कॉस्ट यू अराउंड 50,000 to 75,000 rupees. That is the quality of cotton which will be there because it will be the finest one. Something which is worn by Ambani's, okay, ठीक है। तो उसके अंदर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉटन होता है, और कॉटन एक्चुअली बहुत ठंडा होता है, लेकिन जब आप इसमें टैलिन मिक्स करते हो तो ये उसको हॉट कर देता है, ठीक है। इसीलिए जो कपड़े हम पहनते हैं, ठीक है, या शर्ट्स पहनते हैं कॉटन के, तो भी हम लोग को स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट प्योर कॉटन। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। Maybe the percentage of talin is quite less, but yes, the percentage of talin is do mixed in most of the shirts, okay, and that's why it is called as semi-synthetic. So semi-synthetic means a mixture of two or more, then it is like terylene plus cotton, it will give you the formation of terrycot. So terrycot is there. If you have another example can be like terry wool, you can have an example terry wool. So when you have terry wool means what? Terylene plus woolen, okay, or terylene plus wool is equal to terry wool. Then you have so many number of them.
You can have cupra ammonium silk, viscous rayon. They are all example of semi-synthetic. Semi-synthetic. Okay. So viscous rayon. Another one you can write down. Viscous rayon. Okay. Yeah. Cupra ammonium silk. Cupra ammonium. It is synthetic साड़ी आती है ना, ये इससे आती है ammonium silk. Okay. तो नेचुरल केमिकल से बनता है और इसका ऑल्टरनेट नेम है, इसका ऑल्टरनेट नेम नीचे लिख रहा हूं, इसका ऑल्टरनेट नेम है रीजनरेटेड फाइबर्स. इसको रीजनरेटेड फाइबर्स भी कहा जाता है. रीजनरेटेड बिकॉज आप क्या करते हो, दो फाइबर लेते हो और उसको जनरेट करते हो, तो इसके इसको बोलते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स. ओके, सो इसका ऑल्टरनेट नेम रीजनरेटेड. सो नेचुरल का ऑल्टरनेट नेम प्लांट एंड एनिमल. सिंथेटिक का ऑल्टरनेट नेम मैन मेड पॉलीमर्स. सेमी सिंथेटिक का ऑल्टरनेट नेम रीजनरेटेड पॉलीमर्स. या वेदांत, Sir, what is that chemical? which chemical? Chemical is terylene. No, no. T-E-R, Okay. terylene. It is T-E-R-Y-L-E-N-E. And Vedant, polyester is right. Your this one. The entire thing is regenerated. Okay. So the other name of terylene is polyester. The other name of terylene is polyester. Yeah. Repeat examples of semi-synthetic. है ना? आस्था, ये लिखा है ना इधर, ये रहा. Terrible, terracotta, viscous rayon, cupra ammonium silk. Cupra ammonium silk. Synthetic साड़ी जो आती है ना, synthetic silk की साड़ी, that is from cupra ammonium silk. Okay, is this clear? Yes, sir. Okay. So this is the first classification you have, which is called as what? Source. So the first classification is source. Alternate name, origin. Here you'll find lot of alternate name which is being done. Okay. And whenever it is being done, we say according to that name only. Okay. Okay. So this was the first classification. Now let's make the second classification. Okay. Let's make the second class. Okay. Write down. Classification number 2. Again, you'll have small columns and groups. Okay, just make it so that the work becomes easier again. So here's again second one. Okay. This is on the basis of molecular forces. So write down, second classification is on the basis of molecular forces. On the basis of molecular forces. Okay, molecular forces. It is divided into 4 parts. Okay, it is divided into 4 parts. Okay, part 1. Write down. Now, when you say molecular forces, the first one is elastomer. First one is elastomer.
Okay, and main requirement for this, it has to be elastic. So you can write down elasticity is the main requirement. So write down here, main requirement is what? Elasticity. So it has to be elastic. Elasticity. So molecular forces, first one is elastomer. And elastomer. Elastomer, elasticity. Elastomer, elasticity. देखिए क्या होता है, हम जब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, अगर आप फोर्सेस की बात करो तो मेरे पास में इलास्टिसिटी, जैसे हम लोग कहते हैं कि रबर जो होता है वो रबर ट्रीज पे होता है, इसको निकाला जाता है, इसके बारे में तो बहुत बातें करेंगे हम लोग, इसको निकाला जाता है तो उसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स एक को अटैच करते हैं, यानी जब वो अटैचमेंट करते हैं तो उनमें इलास्टिसिटी होती है। इसीलिए अगर आप रबर बैंड यूज करें, इरेजर जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, रबर बैंड जो लड़कियां लगाती हैं बालों में वो भी, ठीक है, इंक्लूडिंग द वन भी फाइल्स, अगर आपको बहुत सारे पेपर्स को एक साथ रखना है तो भी रबर बैंड का इस्तेमाल होता है, इरेजर, ठीक है। इन सब के अंदर आपके पास में, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इलास्टिसिटी होती है। कैसे मालूम पड़ता है? अगर आप स्ट्रेच करो, इट गेट स्ट्रेच, ठीक है, वो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। करेक्ट। सो हैव टू वेरी केयरफुल कि कहां तक उसकी इलास्टिसिटी है, राइट। सो जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में, या अगर मैंने छोटे छोटे मोनोमर्स लिए हैं और उनको ऐड किया है, एक पॉलीमर बनाया है, जैसे कि रबर बैंड, इट कैन बी इरेजर, इट कैन बी योर टायर्स ऑफ रबर विच आर मेड, ओके, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में उन मोनोमर्स को मैं ऐड करता हूं तो पॉलीमर बनता है, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में होगा वो कौन सा होगा? इलास्टिक होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलास्टोमर। क्लियर? Yes, sir. या नेक्स्ट वन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइबर पे। फाइबर, इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है, नो इलास्टिसिटी, नो इलास्टिसिटी, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होते हैं ये, ठीक है ना। एग्जाम्पल देता हूं, जूट बैग्स। Sir, what you have written in first below rubber band? बिलो रबर बैंड, इरेजर, ठीक है, Eraser and इरेजर एंड टायर्स, रबर टायर्स। मेक इट क्लियर, वेट एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सभी क्लियर कर देता हूं, होल्ड कर एक मिनट। आई पुट इट इन कैपिटल्स, ओके, मोस्टली। So rubber tires, eraser, okay, yeah, or what, rubber bands, right? I said the rubber bands। दुनिया में यार रबर की जितनी चीजें बनती है वो, इन शॉर्ट, चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो। क्लियर? यहां पे एग्जांपल जूट बैग। जूट बैग्स का एग्जांपल बहुत पॉपुलर है। जूट बैग किससे बनता है मालूम है? जूट बैग किसको बोलते हैं? गोनी, घर में यूज करते हैं ना गोनी, उसको बोलते हैं जूट बैग्स। और ये किससे बनती है पता है? जो, हाँ, नारियल होता है ना, नारियल का ऊपर का ब्राउनिश पार्ट होता है, उसको निकाला जाता है और पहले उसको बिल्कुल एक के बाद एक अटैच किया जाता है, और जब अटैचमेंट करते हैं तो उसकी नारियल की रस्सी बन जाती है, ठीक है। और उस रस्सी को जब आप क्रॉसिंग करते हो, वीविंग करते हो, तो उससे जूट बैग्स बनता है। जूट बैग्स बहुत मजबूत होते हैं, हमारे घर में आते हैं, हम लोग लेकर आते हैं, ठीक है, उसमें गेहूं शक्कर चावल सब आता है उसमें, ठीक है। और हम लोग हिंदुस्तानी है यार, तो पूरा इस्तेमाल करते हैं उसका,
ठीक है। पहले हम लोग गेहूं चावल का इस्तेमाल करते हैं, खा लेते हैं उसको, उसके बाद उसको फेंकते नहीं है। पहली बात तो हम लोग लास्ट तक कोई चीज को फेंकते नहीं है, जहां तक हम लोग रख सकते हैं उसको रखते जरूर हैं, ठीक है ना। ये जूट बैग्स बाद में काम आते हैं पोछा मारने के लिए घर के अंदर, उसके बाद घर के बाहर लगाते हैं हम लोग, ठीक है, पाँव पोछने के लिए, ठीक है, तब भी ये वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद में जब हमारे घर में फेस्टिवल्स आते हैं तो भांडे बर्तन जो पुराने होते हैं उसको निकाल के हम लोग डालते हैं और देकर आ जाते हैं, तो भी वो वैसे का वैसे ही रहता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, ठीक है। वाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव इलास्टिसिटी, बट इट हैज वन थिंग विच इज व्हाट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, tensile strength is very strong, so the force of attraction is very strong, and that's why it remains as it is for a very long time. So that is what is called as fiber. It is made from fiber, just like jute bags. Is this clear? समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्मो प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। नाउ जब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में, सो दिस कैन बी recycled, reused, reshaped, रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो। एग्जाम्पल, रबर टायर। फॉर एग्जाम्पल रबर टायर। So is the last one reshape? यस, सो आप रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो। नाउ कैसे? देखिए रबर, जैसे आप अमेजोन की बात करते हैं, अमेजोन अभी सबको मालूम है, ठीक है, काफी पॉपुलर ब्रांड हो गया है इंडिया में अमेजोन। अमेजोन के अमेरिका के अंदर, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ क्रोर्स एंड क्रोर्स प्लांट्स ऑफ रबर। अमेजोन का बहुत बड़ा हिस्सा रबर के अंदर है, ठीक है, या रबर प्लांटेशन में है। रबर एक्चुअली होता है रबर ट्रीज पे, जिसको निकाला जाता है, ठीक है, और निकालने के बाद में इससे रबर जनरेट किया जाता है, ठीक है, इससे रबर जनरेट करते हैं। ये रबर जो जनरेट हो जाता है, ठीक है, उससे हम फॉर एग्जांपल रबर के टायर्स बनाते हैं। अब देखिए रबर के टायर्स जो बनते हैं उसको हम लोग 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स हर जगह इस्तेमाल करते हैं। ये रबर के टायर काफी चलते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल। इन टायर्स को कहा जाता है मोल्डेड टायर्स। इनको कहा जाता है मोल्डेड, यहां लिख देता हूं, मोल्डेड। ये मेरे मोल्डेड टायर्स हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं बहुत समय तक। और याद रखिए हम लोग जो गाड़ी परचेज करते हैं, ठीक है, तो गाड़ी के साथ में टायर्स भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, फ्री है बिल्कुल। तो हम लोग गाड़ी का तो मेंटेनेंस करते हैं लेकिन टायर मेंटेन नहीं करते। जनरली पंचर होता है तो हम लोग उसको वापस से ठीक करा देते हैं, कितने भी पंचर हो हम लोग निकलवा देते हैं, लेकिन उस रबर के टायर को इतनी आसानी से हम लोग जाने नहीं देते। करीबन 10-15 साल बाद जब उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है उन टायर्स की, तो अराउंड द लाइन कुछ कुछ लोग चेंज करवाते हैं, मैक्सिमम नहीं करवाते हैं, 10 to 15 ईयर्स डाउन द लाइन, तो हम लोग क्या करते हैं, इन टायर्स को निकाल के दे देते हैं, ठीक है, और उसकी जगह नया टायर लगा देते हैं। अब आपने जो टायर्स निकाल दिए, हम लोग उसका भी पैसा ले लेते हैं ना, एक्सचेंज में कितना दोगे, ठीक है, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, ठीक है। 10 से 15 साल यूज किए हुए टायर हमने दे दिए और नए टायर लगा लिए, हम अपने घर आ जाते हैं। अब इस टायर का होता क्या है, जो आपने बेच दिया, ठीक है,
इसको वो कंपनीज खरीदती हैं जिनको रबर के टायर बनाने हैं, ठीक है, वो उसको लेती है, उन टायर्स को मेल्ट करती हैं, उसका रबर डेड हो चुका है, ठीक है, काफी हिस्सा डेड हो चुका है, उसमें नया रबर मिलाया जाता है और वापस मार्केट में आते हैं वो। जब मार्केट में आते हैं तो उसके आगे लग जाता है एक री शब्द, इट इज व्हाट, रीमोल्डेड टायर। रीमोल्डेड आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो अभी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मोल्डेड टायर्स और रीमोल्डेड। मोल्डेड मतलब आपका ओरिजिनल टायर्स, जिसको मैंने कंटेनर्स में डाल के उसके बाद उसको मोल्ड्स में डाल के तैयार किया था। तो मैंने उसको शेप दिया था, उसको मैंने साइकिलिंग बराबर की थी, ठीक है, और उसको मैंने यूज किया पूरा अपने टर्म में। उसके बाद मैंने इसको दे दिया और ये रीमोल्डेड टायर के रूप में वापस आ गया। बहुत फर्क होता है रेट्स में। एक मोल्डेड टायर आपको शायद आ जाए, मिले, आज की तारीख में कोई टायर आता है 3-4 व्हीलर्स का तो अराउंड अबाउट 7,000 टू 10,000 के बीच में होता है। बहुत एक्सपेंसिव टायर्स भी आते हैं 15, 20, 25,000 डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज ऑल्सो एंड डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड ऑफ कार्स ऑल्सो, अगर हम यूज कर रहे हैं कार में तो। क्योंकि अगर एक मारुति का टायर है और एक अगर आप यूज कर रहे हैं, कोई भी बड़ी कार्स यूज कर रहे हैं, तो उन टायर्स में बहुत फर्क होता है, ठीक है, द टायर्स विल बी वेरी कॉस्टली, ठीक है। सो जैसे, ठीक है, हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे टायर्स आपके मोल्डेड हैं और जो रीमोल्डेड आते हैं वही जो साथ आपका 10,000 का टायर है वो आपको 1 या 2,000 रुपए में मिल जाएगा। दिस में नॉट रन फॉर 10 to 15 ईयर्स, बट 5-6 साल में तो आपका काम हो ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसका यूज करते हैं रीमोल्डेड टायर्स का भी, ठीक है। तो जिस चीज को रिसाइकल किया जा सकता है, रीशेप किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। सो द मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड देयर इज अ इलास्टिक बिटवीन देम, करेक्ट। लेकिन इसको मैं रीशेप, रिसाइकल, रीयूज किसी भी वक्त कर सकता हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। इज दिस वेरी क्लियर कि व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक? राइट, द वन which can be recycled, reshaped, reused. Example is rubber tires. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So this is which is thermoplastic. अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो होता है थर्मो सेटिंग। वो होता है सेटिंग, थर्मो सेटिंग। थर्मो सेटिंग के अंदर आप ना तो इसको रिसाइकल कर सकते हो, ना आप इसको रीयूज कर सकते हो, ना आप इसको रीशेप कर सकते हो। तीनों भी कार्य नहीं हो सकते। अगर ये तीनों नहीं हो सकते तो इसको बोलते हैं हम लोग थर्मो सेटिंग। थर्मो सेटिंग मतलब once set at a particular temperature you cannot reset it back। आपने एक टेम्परेचर पे इसको सेट कर दिया तो आप इसको रीसेट नहीं कर सकते, और अगर ऐसे होते हैं तो हम कहते हैं थर्मो सेटिंग। इनको थर्मो सेटिंग कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं, Sir, या बोलो। sir, in this recycle, reuse, and reshape is not been done. No? Yes, all the three are not done. I have said it's given a cross, correct? Neither you can recycle, neither you can reuse, neither you can reshape. Okay? So they are called as thermosetting. Once set at a particular temperature, you cannot reset it back. You can't reset. Okay? Example, bakelite. Example, bakelite. You can have melamine, formaldehyde. This is one word, melamine, formaldehyde. Bakelite and melamine, formaldehyde. आप लिख लें, फिर मैं बताता हूँ melamine क्या होता है और bakelite क्या होता है। So what is last form? Formaldehyde,
हाँ आशु तो आदित्य ना? Yes, sir. हाँ, सारे प्रश्न तू ही पूछता है और कोई पूछता ही नहीं मेरे को। तो इसका मैं मतलब अटेंटिव हाँ होता अटेंटिव हूँ है, ना। मुझे मालूम है। मैं बोलने ही वाला था कि एक ही तो इंटेंटिव बच्चा है, उसको मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। बराबर है, लेकिन एक बात याद रख, ठीक है, अभी मैंने सही को जगह दिया है पिछली बार बोल के, ठीक है, तो शी इज एक्टिव ऑल्सो, ओके। नहीं तो उसने बहुत आराम किया है 4 महीने तक, घर क्या बना दिया है, आराम ही कर रही है वो। ठीक है आदित्य, क्लियर है? इट इज Yes. फॉर्मल्डिहाइड, ओके, इट इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेकलाइट, एग्जाम्पल लिख लो बेकलाइट का। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, बेकलाइट का इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इलेक्ट्रिकल स्विचेस क्या होते हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल करते हो आप? इलेक्ट्रिकल स्विच, आप देखोगे आप अपने घर में कई सालों तक इलेक्ट्रिकल स्विचेस को चेंज नहीं करते हैं। देखो घर के फर्नीचर चेंज हो जाते हैं, हमारे कपड़े चेंज हो जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो स्विच है वो कई सालों तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। हालांकि जब तक हमको कुछ इंटीरियर का काम नहीं कराना पड़े या हमको चेंजेस न करना पड़े, तब तक हम लोग इनमें कोई चेंजेस नहीं करते, और ये चलते भी बहुत लंबे हैं, ठीक है। Why? Because they are made from bakelite and bakelite is very strong. It's a strong structure. अभी हम लोग देखेंगे उसको थोड़ी देर में दिखता कैसे है, और फिर हम लोग इसको बनाएंगे लास्ट में जाके बेकलाइट बनता कैसे है, तो उसके रिएक्शंस भी हैं, करेक्ट। सो बेकलाइट वेरी स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिकल स्विचेस लिख लें। और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड ये होता है जो आप आज भी अगर महाराष्ट्र के गांव में चले जाएं, बहुत सारे, महाराष्ट्र ही नहीं हिंदुस्तान में कई गांव हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, और उनमें गांव हैं, करीबन 1 लाख से ज्यादा गांव हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इंटीरियर पे जाएंगे तो वहां पे लोग इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक प्लेट्स, ठीक है। मैं डिस्पोजेबल की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्पोजेबल प्लेट अलग होता है, प्लास्टिक प्लेट अलग होता है। प्योर प्लास्टिक से बनी हुई प्लेट्स होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेट्स होती हैं। अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनके पास में प्लेट्स होंगी 25-30 साल से, आज भी उन्होंने उसमें खाना नहीं छोड़ा है। ये प्लेट्स को आप यूज कर सकते हो, रीयूज। जैसे हमारे घर में स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, आपने देखी होंगी, वो नहीं जो बिस्लरी भर के आती है, करेक्ट, वो बॉटल्स जो थोड़ी सी बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, ठीक है, और आप इसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकते हैं। ये नॉन डिस्पोजेबल प्लास्टिक इज कॉल्ड एज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। इनकी प्लेट्स बनती हैं, इनकी कटोरी बनती है, ठीक है, इनके चम्मच बनते हैं, और इनको आप 10 साल 15 साल 20 साल भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। बिकॉज वैसे भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक वैसे भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसका इस्तेमाल करें आप लंबे समय तक, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। सो दिस इज मॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर यू, 4 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज इलास्टोमर, यानी इलास्टिसिटी होनी चाहिए, रबर टायर, इरेजर, रबर बैंड्स, सो ऑन। फाइबर, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है लेकिन मजबूती पूरी होती है, एग्जाम्पल जूट बैग्स, मैंने बताया गोनी। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक विच कैन बी रीशेप्ड, रिसाइकल, रीयूज्ड अगेन, एक बार यूज करके आप इसको रीयूज कर सकते हो। रबर टायर्स, थर्मोसेटिंग, they can't be reshaped, resized, reused. Once set on a particular temperature, they cannot be reset back. Okay, so they are called as thermostatic, and the examples are bakelite and melamine formaldehyde. Is that clear? समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत तो नहीं? सर मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल रिपीट करो ना। अभी बताया ना, प्लास्टिक की प्लेट्स है ना, आपने देखा होगा प्लास्टिक की प्लेट्स, ठीक है। एक मैं एक एग्जांपल यहीं दे देता हूँ, रुको, होल्ड करो, होल्ड करो। ये इस तरह की जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती है ना, ये वाली, ठीक है, ये बॉटल बहुत मजबूत होती है। ये आपके पानी की जो बॉटल्स हैं, जो बिस्लरी आती है वैसी नहीं होती है, ये बहुत हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप यूज करें 5 साल 10 साल, ठीक है, इनको कुछ नहीं होता। क्लियर? समझ में आ गया?
Yes, sir. ओके, सो ये हैं जिनको हम यूज करते हैं, और ये है मेरे मॉलिक्यूलर फोर्सेस, विच इज द सेकंड क्लासिफिकेशन। अब करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन। चलिए, थर्ड क्लासिफिकेशन, ओके, ये होता है स्ट्रक्चर पे। तो लिखिए स्ट्रक्चर, थर्ड क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर पे। ये तीन तरह के होते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगेन एक छोटा सा कॉलम वर्क कर लेते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर सबसे पहला होता है लीनियर। लीनियर मतलब सीधा 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 सीधा, ठीक है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देता हूं, इथीन, हम लोग ने उस दिन किया भी था शायद। इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये आपको देगा CH2 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 कितने बार, n टाइम्स। So you start with one and another line here and n times. ये किया था ना, हम लोग ने किया था ये। Yes, sir. Yeah, ethene is converted to polythene. Okay, हाँ, या polyethylene, correct। और प्लास्टिक बैग्स, ये लीनियर होता है। लीनियर क्यों होता है, देखो इसको बिल्कुल स्ट्रेट चेन से बनाया है, बिल्कुल सीधी चेन है ये देखो, ये चेन जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी चेन है। जब ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर, ठीक है। तो एक छोटा सा बॉक्स में डाल देंगे इसको, ताकि एक एग्जाम्पल हो जाएगा लीनियर कैसे होता है। ये बुक में नहीं दिया है, ढंग से नहीं दिया है, तो आप बना लें इसको लीनियर, ऐसा बिल्कुल सीधी चेन, ये होता है लीनियर। स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मजबूत होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन लीनियर। नेक्स्ट होता है, उसको कहते हैं, ये है, और एग्जाम्पल लिख लें आपका, पॉलीथीन, पॉलीथीन लिख लें, पॉलीथीन या पॉलीथीन, जैसा लिखना हो, फ्रॉम इथीन, इथीन टू पॉलीथीन, इथीन टू पॉलीथीन। दूसरा होता है, उसको कहते हैं ब्रांच्ड। दूसरे को कहते हैं ब्रांच। तो एक तो स्ट्रक्चर मेरा सीधा 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 होगा, और दूसरा ब्रांच होगा। अब ब्रांच का एग्जांपल है मेरा प्रोपीन, जिसको हम लोग प्रोपिलीन भी कहते हैं। देखिए, प्रोपीन और प्रोपिलीन में कोई फर्क नहीं है, इथीन और इथाइलिन में कोई फर्क नहीं है। अगर आप यहां कहते हो ना कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप इथिलीन कहो या आप इसको इथीन करो, कोई फर्क नहीं है। ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका IUPAC है। सो कॉमन नेम इसका होता है इथाइलिन, और IUPAC होता है इथीन। उसी तरह से मेरे पास में प्रोपीन भी है, तो प्रोपीन क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको आप प्रोपिलीन बोलो या आप इसको प्रोपीन बोलो, कोई फर्क नहीं। प्रोपिलीन इसका कॉमन नेम है और प्रोपीन इसका IUPAC नेम है। अंडरस्टूड? ओके, अब देखो मैं इसको दिखाता कैसे हूं, आई विल शो दिस। ये आपके प्रोपिलीन को दिखाऊंगा कैसे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो मैं इसको देखो दिखाते वहां से, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा प्रोपिलीन है। तो देखो यहां लिखता हूं मैं, अब CH3CH
डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब मैं इसको एक काम करते हैं, मैं इसको और भी सीधा कर देता हूँ। एक मिनट रुको। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आपको देगा कोई ऐसा स्ट्रक्चर। कैसा देगा? CH3 CH CH2, डबल बॉन्ड निकाल दो सब। अगेन CH3 CH CH2, लाइक दैट इट विल गो ऑन। ठीक है, ये चालू होगा, ये चालू होगा, और ये N10 तक जाएगा, और इसका नाम है पॉलीप्रोपिलीन। इसका नाम है पॉलीप्रोपिलीन। तो ये स्टार्ट फ्रॉम प्रोपिलीन एंड एंड एट पॉलीप्रोपिलीन। CH3 CH CH2, CH3 CH CH2। ओके, तो ये दिखाई कैसे देता है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ओके, तो ये कैसा दिखेगा? अगर मैं इसको अगर एक स्ट्रक्चर के रूप में देखूं तो कैसा नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा ये। तो ये मेरा स्ट्रक्चर होगा, और ये मेरी नीचे वाली लाइन, ये जो है ना CH CH2 CH CH2, ये मेरी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, पहले सीधी सीधी लाइन पहले बना देता हूँ, और ब्रांच है ना ये, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, और छोटी छोटी ब्रांचेस। ये जो CH3 जो ऊपर नजर आ रहा है ना, ये ब्रांच के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हल्की हल्की ब्रांचेस नजर आएंगी, ये 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 इस तरह की ब्रांचेस। ओके, ऐसे। तो ये हो गया मेरा ब्रांच स्ट्रक्चर। तो ब्रांच में छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जबकि लीनियर बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, इसको बना के रख लें ताकि याद रहेगा, ये ऐसे ही बनता है। क्लियर? Sir, example for this. दिया है ना, ये क्या लिखा? इतना बड़ा एग्जाम्पल लिखा है यार मैंने। प्रोपिलीन टू वो पॉलीप्रोपिलीन लिखा तो है, ये इतना बड़ा बना के तो दिया। ये क्या है? ये दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, प्रोपिलीन टू पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? देखो ब्रांचेस बता रहा है ना, नीचे वाला तो सीधा सीधा हो गया, और जो उसमें मिथाइल ग्रुप है, इट इज एक्टिंग एज अ ब्रांच। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? तो यहां लिखता हूं ओके। तो अभी सब लोग लिखो पहले, इज इट अंडरस्टूड और नॉट, तभी आगे चलते हैं। नहीं तो पता चलेगा आधे लोग किधर हैं और कौन से दूसरे ट्रैक पे। अंडरस्टूड, ओके। चलो वैष्णवी, यू अंडरस्टूड। आस्था, यू अंडरस्टूड। हर्ष अंडरस्टूड। आदित्य, अरे वाह। भक्ति, प्रथम, ओके सही। नेहा, अनामिका, ओके। आकांक्षा, हम लोग के इतने ही लोग हैं यहाँ पे, कम से कम 55-57 लोग हैं। ठीक है, और आंसर्स एक का भी नजर नहीं आता है मेरे को। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग करते हैं, और इसको कहा जाता है नेटवर्क। इसको कहा जाता है नेटवर्क। नेटवर्क भी कहते हैं इसको। इसका ऑल्टरनेट नेम है क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग, इसका ऑल्टरनेट नेम है क्रॉस लिंकिंग। नेटवर्क और क्रॉस लिंकिंग। सो जब हम बात करते हैं नेटवर्क या क्रॉस लिंकिंग का, मेरा एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल वही है जो पिछली बार किए थे हम लोग ने, बेक लाइट और
मेलामाइन, आदित्य क्या था वो? What, sir? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। Yes, yes. हाँ, इसीलिए तेरे को पूछा मैंने, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम लोग बाद में बनाएंगे जब हम लोग आगे बात करेंगे तब, बिकॉज इसके स्ट्रक्चर इतने आसान नहीं है। लेकिन ये है बेकलाइट मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड मतलब आप यूज कर सकते हो एज प्लास्टिक प्लेट्स। ठीक है, प्लास्टिक प्लेट्स तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके लिए वापस नहीं लिखा रहा। हाँ, इसका स्ट्रक्चर जरूर बना के दे रहा हूं, ये कैसा दिखाई देगा। इट इज नेटवर्क और क्रॉस लिंकिंग। तो देखो अगर मैंने एक टुकड़ा लिया इसका तो कैसा नजर आएगा। ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले तो ये सीधा 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 होगा, ठीक है, स्ट्रेट। और फिर क्रॉस होगा, क्रॉस में भी होगा ऐसे, तो एकदम मजबूत हो जाता है। अभी इलेक्ट्रिकल स्विच जो बनता है ना, ऐसे बनता है। तो आपको एकदम अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह का इलेक्ट्रिकल स्विच होगा और क्यों इतनी आसानी से इतने लंबे समय तक चलता है। रीजन इज इट इज क्रॉस लिंक। तो हर लिंक के ऊपर मजबूती बहुत ज्यादा है, हर कोने पे, हर थोड़ी देर में क्रॉस, हर थोड़ी देर में क्रॉसिंग, तो उसके कारण स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके तीन स्ट्रक्चर्स हैं, एक है लीनियर, एक है ब्रांच और एक है नेटवर्क। चलिए एक रीकैप कर लेते हैं बिफोर वी गो अहेड। हम लोग ने शुरू किया था आज सुबह क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर से। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में सबसे पहला आता है सोर्स या ओरिजिन। सोर्स एक्चुअल नाम है या और उसका ऑल्टरनेट नेम है ओरिजिन। अब आदित्य को घर में आदित्य बुलाते हैं, ठीक है, या सोनू मोनू टोनू कुछ भी बोल सकते हैं, चन्नू मुन्नू टोनू कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑल्टरनेट नेम इज ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन यानी उसका ऑल्टरनेट नाम क्या हो गया, एक्चुअल नाम आदित्य है। ठीक है, चलिए डिवाइड किया गया तीन में। एक है नेचुरल। नेचुरल मतलब आपको कुदरती तौर पे जो मिलता है वो। प्लांट एंड एनिमल पॉलीमर्स इसका ऑल्टरनेट नेम है। ठीक है, और बिफोर दैट आई टेल यू, आज मेरे इतने बोलने के बाद भी काफी लोगों के कैमरास बंद हैं। नेक्स्ट टाइम पे एंड आई एम द होस्ट, तो मैं एक बार में मेरे को जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया, सी आई फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड यू आर सपोज टू फॉलो इन लाइन। सब लोग के मैक्सिमम 70% लोगों के कैमरास बंद है। ठीक है, और आप लोग ने किसी ने सर को नहीं बोला है कि हमारे कैमरास बंद रहेंगे या हमारे कैमरास में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगली बार किसी का भी कैमरा मेरे को बंद दिखा, क्योंकि सर ने मेरे को सीधा बोला है यू इजेक्ट देम आउट फ्रॉम द मीटिंग स्ट्रेट अवे। और मैं एक बार इजेक्ट करूंगा ना तो उस मीटिंग में तो आप नहीं आ सकते, ये बात तो तय है। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे वापस नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूंगा। सीधा ज्वाइन किया मैं इजेक्ट कर दूंगा। इजेक्ट कर दिया मतलब समझ जाना कि आपका कैमरा बंद था इसलिए मैंने इजेक्ट कर दिया। सर ने मेरे को बहुत क्लियरली बोला है अगर किसी के कैमरास बंद है, अभी ये वीडियो आज वापस जाएगा उनके पास में, ही विल हैव अ लुक एंड ही विल गोइंग टू स्पीक टू मी अगेन। मैंने स्टार्ट में भी बोला था। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन जब आपको दिया गया ना तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन लाइक एनीथिंग। आप लोग वीडियो के सामने सो जाओ, जो करना है वो करो, इट इज ओके, बट द वीडियो हैज टू बी ऑन। और अगली बार इजेक्शन होता है तो डोंट ब्लेम मी, बिकॉज कम से कम 6 लेक्चर हो चुके हैं और 6 लेक्चर में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं और हर बार आई विल नॉट रिपीट दिस। अगर आपका इजेक्शन वापस हुआ, आप रीजॉइन नहीं कर पाओगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास सो सकते हो घर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला जो सेशन है यहां से वो सब रिएक्शन से भरे हुए हैं, तो एक बार जो हो गया वो रिपीट भी नहीं होगा, मैं रिपीट भी नहीं करूंगा। सो उम्मीद करता हूं अगली बार ये काम नहीं हो। 6 लेक्चर से कंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, और जिसका कैमरा बंद वो बाहर, वो बाहर तो बाहर, नो प्रॉब्लम, वेरी क्लियर। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। सुतेश तेरा कैमरा फिर से बंद हो गया। आदित्य, ठीक है, आई एम लेटिंग यू नो कि तूने वापस कैमरा बंद किया है। ओके, आदित्य तेरा कैमरा भी बंद हुआ है वापस से, अभी अभी इसी वक्त। सो नेक्स्ट टाइम तुम लोग कर लो। अभी मैं सर से बात कर लेता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये बात हुई है।
और बहुत लोग क्या, मेरे पास तो सबका सब दिख रहे हैं मेरे को, आई हैव सीन, और यहाँ पे कैमरास बंद रहते हैं। मैंने क्या बोला है, खाना पीना जो कुछ करना है कर लो, ठीक है, जाना है चाय पी के आ जाओ, कॉफी पी के आ जाओ, सिर्फ नहाने का काम नहीं करोगे, ठीक है, नो इट इज नॉट, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सारे काम कैमरा के सामने किए जा सकते हैं, ठीक है। सो एवरीबडीज कैमरा हैज टू बी ऑन, और जो इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है ना। Yes, sir. एक चलो, क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग ने बात किया। वी हैड सोर्स एंड ओरिजिन, नेचुरल एज प्लांट एंड एनिमल पॉलीमर्स, प्लांट जो होता है, ठीक है, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कॉटन एंड रबर। एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं वुल एंड सिल्क। इसके बाद हमने बात किया सिंथेटिक के बारे में। सिंथेटिक मतलब होता है मैन मेड पॉलीमर्स, यानी हम लोग बनाते हैं इसको इंडस्ट्रीज में, ये आपको कहीं मिलते नहीं है, ठीक है। सो इनको हम लोग बोलते हैं केमिकल्स। अगर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है तो हम लोग कहते हैं सिंथेटिक। एग्जाम्पल है इसके नायलॉन, नायलॉन की ब्रांच के रूप में हम लोग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, रोप्स का, वॉलेट का, टायर्स का, बैग्स का, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है नायलॉन का हमारी लाइफ में। मैंने एक ही लिया है सिंथेटिक, जस्ट टू मेक यू रिमेंबर। जहां तक होते हैं एग्जाम्पल्स मिनिमम रखें, सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर, यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। सेमी सिंथेटिक, जब आप सेमी सिंथेटिक का इस्तेमाल करते हो तो दो चीजों का एक साथ अलग अलग फाइबर का इस्तेमाल होगा, एक जो नेचुरल से बनेगा और एक जो केमिकल से बनेगा। नेचुरल प्लस केमिकल, ओके, ये बनेगा मेरा सेमी सिंथेटिक। यानी आप नेचुरल का भी इस्तेमाल करोगे और कुछ ना कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल जरूर करोगे, ठीक है। टैरलिन इज अ केमिकल, combines with cotton to give you terrycot. Talin combines with wool to give you terrywool. स्वेटर, सिंथेटिक स्वेटर्स जो आते हैं, सिंथेटिक जैकेट्स जो आते हैं जो आप पहनते हो, वो सब बनते हैं सेमी सिंथेटिक से, ठीक है। विस्कस रेयन, क्यूपरा एमोनियम सिल्क, so many number of things are there which comes from semi synthetic. It is also called as regenerated fiber. ये इसका alternate name है। नेचुरल का alternate name plant and animal, synthetic alternate name chemicals, ठीक है, या man made polymers, केमिकल्स नहीं, man made polymers, सेमी सिंथेटिक इज रीजनरेटेड पॉलीमर्स। ये मेरा पहला क्लासिफिकेशन था। इसके बाद हमने किया दूसरा क्लासिफिकेशन, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें इलास्टोमर, इलास्टोमर के अंदर इलास्टिसिटी चाहिए ही चाहिए, बिना इलास्टिसिटी के बनते ही नहीं है। एग्जाम्पल रबर टायर्स, इरेजर्स, रबर बैंड्स। फाइबर, नो इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड, इसमें इलास्टिसिटी की जरूरत नहीं है, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल जूट बैग्स। थर्मोप्लास्टिक, दे आर रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, रीशेप्ड। अगर आप इसको कर सकते हो तो उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल रबर टायर्स, रबर टायर का इस्तेमाल करें, उठा के फेंक दें, वापस से आपको नया रबर टायर मिल जाएगा, तो इट इज कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, इट कैन नॉट बी रीसेट बैक, वन सेट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर यू कांट रीसेट, तो इसको रीसेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बेकलाइट और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। बेकलाइट आज भी रजवाड़ों में या पुराने आप फोर्ट्स में चले जाएं, ठीक है, तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिकल स्विच नजर आएंगे ब्लैक कलर के, ठीक है। इनको अभी लगवाया गया है, लेकिन इनको भी लगा के कम से कम 70-80-100 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर भी ये काफी अच्छे से चलते हैं, इनको कुछ परेशानी नहीं आती है, ठीक है, बिकॉज बेकलाइट को और मेलामाइन को बहुत समय तक कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने किया स्ट्रक्चर्स। तीन तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है लीनियर, ठीक है, एग्जाम्पल इथीन टू पॉलीथिन, बिल्कुल सीधे 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 सीधे, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। ब्रांच, प्रोपिलीन टू पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, तो प्रोपिलीन से पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। और हम लोग इससे जब इसको बनाते हैं, प्रोपिलीन से पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ब्रांचेस जो है वो आपकी मिथाइल ग्रुप जो है वो एक्ट करती है ब्रांच, और बाकी CH2 ये चेन है लगातार चलती रहेगी, और ये हो जाएगा मेरा ब्रांच स्ट्रक्चर। नेटवर्क और क्रॉस लिंकिंग, इसके अंदर आपके पास बेकलाइट है और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। ब्रांच स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने एक छोटा सा उसका एग्जांपल दिया है। इनको लंबे समय तक कुछ नहीं होता है, यू कैन यूज इट वेरी वेरी एफिशिएंटली। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट और लास्ट आज के लिए, जिसकी शुरुआत हम करेंगे, खत्म तो नहीं कर सकते, शुरुआत करेंगे, और वो है आपके पास में पॉलीमराइजेशन। सो दिस इज द फोर्थ टाइप व्हिच इज पॉलीमराइजेशन। कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फोर्थ इज पॉलीमराइजेशन।
पॉलीमराइजेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एडिशन और एक होता है कंडेंसेशन। एडिशन और कंडेंसेशन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का नुकसान नहीं होता ऑन एडिंग देम, इट इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। यानी कि इफ आई एड द मॉलिक्यूल्स, नो मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट, नो molecules are lost, then it is called as addition polymerization. Then it is called as addition. Example हम लोग ने बहुत दो चार तो अभी कर लिए, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक मेरे पास में है पॉलीथिन, ठीक है, इथिन इथिन टू पॉलीथिन। फिर उस दिन किया था विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड टू पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, आज किया प्रोपिलिन टू पॉलीप्रोपिलिन, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है जिनके अंदर हम लोग इनको ऐड किए, हमने ऐड किया इनको, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल का नुकसान नहीं होने दिया। दे गॉट एडेड टू ईच अदर, वी रिमूव द डबल बॉन्ड, हमने डबल बॉन्ड निकाल दिए और हमने इस पे काम किया, तो इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इनको कहते हैं एडिशन। और So what you have written after PVC? बेटा पॉलीप्रोपिलीन लिखा है, ठीक है ना, पॉलीप्रोपिलीन अभी बनाया था ना, प्रोपिलीन से प्रोपिलीन से पॉलीप्रोपिलीन, ये बनाया ना तूने, इधर है ना Yes. भाई, अभी तो बनाया। ये क्या है, ये वाला प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, प्रोपिलीन टू पॉलीप्रोपिलीन, क्लियर? So it is polypropylene. Okay. Yes. Sir, Yeah. sir, नुकसान in what way? नुकसान मतलब आपका कोई भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हुआ ना, आपने उनको ऐड कर दिया। अगर देखिए मैं अगर लेट्स इमेजिन इफ आई एम मेकिंग इथिन से पॉलीथिन, बराबर, अगर इथिन से पॉलीथिन मेरे को बनाना है 1 kg इथिलीन तो 1 kg ऑफ पॉलीथिन, अगर इसमें से मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, ठीक है, इफ आई लूज द मॉलिक्यूल्स, तो 1 kg की जगह कितना बनेगा 800 ग्राम्स, तो 200 ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट। ओके, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का लॉस नहीं होता, ठीक है, सो नो मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट, दे आर जस्ट एडेड टुगेदर, राइट? See, if I have ethene, I make it polythene, I don't lose a molecule. They keep on adding like anything. So that is what we say is no molecules are lost. Is this clear? समझ में आया? और अभी हम लोग करेंगे तो और समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम कंडेंसेशन में बात करेंगे ना, you either lose a water molecule, lose a water molecule or an alcohol molecule or an HCl molecule, or like this types of molecules are lost. When you lose the molecules like this, then it is called as condensation polymerization. That means what? If you add two molecules, one molecule of water is removed, okay, or one molecule of alcohol is removed or HCl is removed, then it is called as condensation polymerization. But in the case of addition, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऐड होते चले जाते हैं, कोई मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता है। तो जब लॉस नहीं होता है तो बोलते हैं एडिशन, और अगर लॉस होता है तो बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. एग्जाम्पल अगेन, बेकलाइट एंड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। मैंने एग्जाम्पल भी सेम ही रखे हैं ताकि आपको ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत ना पड़े। और ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड है आदित्य, नहीं तो फिर पूछेगा क्या है। Okay. So polymerization two types, one is called as addition, another is called as condensation. Okay, in the case of addition, no molecules are lost. Example, polythene, PVC, polypropylene. And condensation, there is a loss of water molecules, and that is in like दो molecule combine करेंगे एक water molecule जाएगा, दो molecule combine करेंगे एक water molecule जाएगा। मतलब अगर एक reaction होता है तो lakhs and lakhs of water molecules or alcohol molecules or HCl molecules or this type of molecules are lost. So that is called as a condensation polymerization. When you do not lose a single molecule, they just keep on adding with each other, then it is called as addition polymerization. Okay,
So examples of both of them are there. Addition is polythene, PVC, polypropylene, and so on. And when you talk about condensations, you have got bakelite, melamine formaldehyde, and so on. You have nylon, nylon 6,6, terylene, so many number of things which you are going to make. Clear? समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. Next heading which you will write is reactions of addition polymerization. लिखिए reactions of addition polymerization. यहां से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? Reactions of addition polymerization. चलिए एक दो एग्जांपल कर ही लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि हम लोग ने इसको शुरू कर लिया. So reaction of addition polymerization, दो रिएक्शन करेंगे and we'll stop for the day. आज टेस्ट नहीं ले रहा और सुबह तो ले ही नहीं सकता था, सब लोग नींद में थे, सब लोग की आंखें ही नहीं खुली थी, ठीक है? नेहा ऐसा लग रहा था जबरदस्ती आके बैठ गए हैं. अब ये सोचो तुम लोग को कि क्लास में पहुंचना होता है, कोई लेक्चर्स होते हैं तो, ठीक है ना, जैसे रेगुलर टाइम में होता था, स्कूल जाना पड़ता था. अभी तो घर में बैठे हो यार, तो भी आंखें नहीं खुलती है. क्या करेंगे? कितना मुश्किल काम होता जा रहा है. चलिए, रिएक्शंस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन. इसीलिए सबके कैमरे बंद रहते हैं ना. सर अभी तो उठे, कहाँ पे उठा रहे हो? अभी इतनी बारिश हो रही है. अरे आंख ही नहीं खुलती और आप आंख खुलवा रहे हो जबरदस्ती के, चद्दर से बाहर नहीं निकले. लास्ट टाइम सेम थिंग, आई कॉट 2 or 3 स्टूडेंट्स, ठीक है? फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कैमरा ऑन हो गया, ठीक है? उसमें से एक लड़की तो फेस पैक लगा के, खीरा वीरा लगा के बैठी थी आराम से. मैंने उसको बोला, उसको मैसेज डाला, देख बॉस ये खीरा निकलने वाला है. तो शी सेड सॉरी सॉरी. मैं बोला यार ऐसा होता है. और एक बिस्तर के अंदर, और क्या हुआ, मतलब उसने कैमरा वैसा रखा हुआ था कि जो इट कुड बी लाइक, बस सामने से आवाज आए, और हेडफोन लगा रखे थे और आराम से सो रही थी, ठीक है? तो दैट हैज हैपेंड, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए. बट कम से कम फॉर्चुनेटली आप लोग टेबल पे बैठे हो, है ना आदित्य? The most attentive student I have right now after सही, ठीक है? चलिए, reactions of addition polymerization. Addition polymerization. Number 1, CH2 double bond CH2, which is what? Ethene. It is ethene plus again CH2 double bond CH2, which is ethene again. ठीक है? दोनों को आपको ऐड करना है. क्या करना है? सारे डबल बॉन्ड निकाल दो. CH2 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 CH2, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. देखिए ये जो आप डालते हो ना यहाँ पे, ये लाइन जो डालते हो क्रॉस में, लास्ट में और फर्स्ट में, ये कंटिन्यूटी चेन है. तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, मेरा कोई मॉलिक्यूल का नुकसान नहीं हुआ, ये सब ऐड हो गए, तो ये बन जाएगा वापस इथीन. लेकिन आगे क्या लगाऊंगा? पॉली. so it will become polythene. तो मेरे एडिशन के कम से कम हम लोग 10 रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है? तकरीबन 10 के आसपास, ठीक है? सो दैट द concept of addition polymerization is clear, and then we can start off further. So reactions have already started. यहां से reactions ही reactions हैं, कम से कम आपको 30-30 reactions के आसपास करने हैं. Okay, so gear up for that. And next time please, it's my humble request for everybody, don't make me do like one thing which I don't like doing, because मुझे मालूम है अगर नुकसान होता है किसी का तो कितनी परेशानियां होती हैं. एक ही चीज बोला है, कैमरा सबका ऑन चाहिए, और दूसरी बार बोलूंगा नहीं, हर्ष तेरा कैमरा फिर से बंद है, अभी और बता दूं थर्ड टाइम, ठीक है? तो अभी जिसको बंद करना है कर लो, अगली बार बंद करोगे तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं उस लेक्चर के लिए. और ये बता दूं अगली बार, ठीक है, दैट विल बी डूइंग राउंड अबाउट 15 रिएक्शंस. एक बार गया तो गया, और ये रिएक्शंस आपको कोई सिखा भी नहीं सकता वापस. उसको देखोगे बुक में और जो हम करेंगे उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है. सो प्लीज ट्राई टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लियरली विच हैज बीन गिवन टू यू. और ये इंस्ट्रक्शंस आपके मुझको सर ने भी दिए हैं. सर ने भी मुझे कहा है कि अगर बंद है कैमरा निकाल दो सीधा बाहर. मैंने बोला सर नुकसान हो जाएगा. बोला जब समझ में नहीं आता है तो नुकसान ही सही, ठीक है? होपफुली दिस इज अंडरस्टूड. क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. फाइन. नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट ऑन एंड नेक्स्ट हेडिंग आप डाल के रखें इसके नीचे इज अगेन प्रोपिलीन टू पॉलीप्रोपिलीन लिख के रखें. प्रोपिलीन टू पॉलीप्रोपिलीन लिख लें. प्रोपिलीन टू पॉलीप्रोपिलीन यहां से शुरुआत करेंगे. सर हाँ बोलो. सर आपने वो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? एन टाइम्स होगा ना. हाँ, एन मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लगातार ऐड होते चले जाएंगे एन टाइम. ठीक है. हमको देखो हम क्या करना है, हमको पॉलीमर बनाना है और पॉलीमर में वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती. वैलेंसी जैसी सेटिस्फाई हुई ना कि इसमें से एक भी CH3 बना तो रिएक्शन रुक जाएगा. CH2 इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है. CH3 होते वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी. तो आपको यहाँ पे जब ऐड करना होता है तो आप उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करते हो. ठीक है, क्लियर? ओके, so see you next time. Till then, tata, bye bye. Okay, enjoy yourself. Chalo, bye. Bye, Bye, sir. Okay, bye. Bye, sir. Bye, 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 bye. Bye, sir. Bye.